I'm Maneet. Hi, I'm Mansha, and welcome to the very first episode of Mantras. Today we have with us someone who can see beyond the stars and help us understand ourselves better. Please welcome Anchal Ketrapal. Hello. Welcome, Anchal. Anchal is an astrologer, Vastu consultant, and a lifestyle coach. To admit, initially I was very skeptical about astrology, but seeing Anchal's spiritual approach has really changed my perspective. I'm glad. So Anchal, let's start from the very beginning. How did you get into astrology? Was it something आप बचपन से ही आपको इसमें interest था कि कोई life events हुए जिसमें आप this has brought you into astrology? Spirituality was always a part. Astrology was never. And moving forward, life unfolded, and it was basically my mother's death when I really had burning questions within myself. And when I was going deeper into my journey of spirituality and meditations, that is where I learned that it has a connection. Astrology has a, it carries a blueprint for this particular lifetime, what the soul is here to do. So that's exactly why I got deeper into it, because being here in Western culture, I was learning about tropical and Western astrology and stuff like that. But later I realized that Vedic astrology is far more deeper, because this revolves around moon and Western astrology revolves around sun. So sun takes 1 month in one zodiac sign, and moon takes 2 days in one zodiac sign. So that is how I felt, no, there's something here. I need to go back to my roots and understand what exactly is this doing. So everything that is coming, in my perception, astrology is actually holding a lot of keys to your own life, this particular life, but how can you deal, and what is written for you, and what are you here to do? And that is where your spiritual growth comes, that is where your emotional balance comes into place, and acceptance of life and whatever life throws into your life. So yeah, that's how I feel astrology is a vast chapter and very profound one. Yeah. This is something very new for me. Yeah, And yeah. Sun and Moon. I was Yeah. thinking that there are two parts, Sun and Moon, Yeah. but it is different for Western and Yeah. this. It Yeah. is new for me. Yeah. Wow. Nice. So it means, Achal, my question to you, as you said that Sun and Moon, whenever we are placing charts or making a Janam Patri for someone, it's different, Yeah. because Vedic astrology is different and Western is different. Yeah. So if we can elaborate this one. The only difference is that when we come to Western astrology में हम राहु केतु को नहीं लेते और उसको हम यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो को लेते हैं, और वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि सन की प्लेसमेंट कहाँ है. इसलिए जोडियाक में हम देखते हैं कि एक होता है ना, लीब्रा में अगर सन है तो वो, अगर आपका सन लीब्रा है तो आपको लीब्रन बता दिया जाता है. अगर आपका सन कैंसर उसमें फॉल करे तो आपको कैंसर. पर अगर आप हिंदी में बात करोगे, अगर आप राशि चेंज देखते हो तो हिंदी में हमेशा आप कहते हैं कि हमारी राशि जिसकी लिब्रा थी वो सिंह हो गई या कुछ और हो गई. इट्स ऑलवेज डिफरेंट, बिकॉज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी वी आर लुकिंग एट द मून. वेयर इज मून? बिकॉज मून एक राशि में बहुत कम देर रह रहा है कंपैरेटिवली टू व्हाट सन 1 महीना रह रहा है उसी राशि में. तो जब हम बात करें कि इट्स लाइक गोइंग लाइक, ओके, आई लिव इन न्यूजीलैंड. अब न्यूजीलैंड में आप कहाँ रहते हो? ऑकलैंड में रहते हो. ये जेनरिक हो गया. लेकिन अब मैं ऑकलैंड में अगर आपको मिलने आऊँगी तो मैं आपको पूछूंगी आप ऑकलैंड में कहाँ रहते हो? आप ऑकलैंड में, ओके, आई एम हेयर इन दिस पर्टिकुलर प्लेस. फिर उसके हिसाब से हमारी सारी चीज़ें बदल जाती है कि अब हम बहुत प्रिसाइज देख रहे हैं उस चार्ट को. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ फार शार्पर एंड आई वुड से precise. Okay, so Achal, to understand more about the difference between Vedic astrology and the Western astrology, so everyone should have 2 zodiac signs then, like me, my name starts from M. So as per those little Janam Patris that I have seen, they call me Singh Rashi or something. And then when I see my zodiac sign, with my birth, like I'm a June born, so it's Gemini. Yes. And then somewhere I read that I'm Aquarius, so I'm not sure like how many zodiac signs I have. This is what you meant, right? This is where I feel that it's because so much stuff is happening on social media, every information is there, and of course
information is there, but you don't know how to process it. You don't know how to make that 1 + 1 is equal to this. That is lacking. That is the structure. Like if we go to the doctor, we all know what we use Panadol for or paracetamol or something. But a doctor knows exactly what is actually happening in the body. Is paracetamol good at this time or something else is required? And we may just, hamper the body furthermore rather than consulting the doctor. And that's where I feel that कुछ टाइम पहले तक तो किसी को नहीं पता था कौन से planets हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, क्या हो रहा है. अब all of a sudden इतना हो गया कि लोग हर चीज़ को अपने कभी planet से relate कर रहे हैं, कभी number से relate कर रहे हैं, and they don't even know कि कौन सा number उनके लिए अच्छा है, नहीं है, what is the connection. For that you need somebody जो तुम्हें ये चीज़ बता सके कि is fine or not. And also I think it's a lot of fear driven. Everything is coming from fear. And that's where I feel it loses its potency. The astrology itself loses its charm and why it बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम लोगों ने astrology को use कर लिया है और वो मुझे लगता है कि this is the adversity of it. Like ये खराब है, ये गलत है. This is a vast science and it is science and it's all mathematical calculations. But जिस तरह से हम इसको use कर रहे हैं वो हमारी growth की बजाय हमें fear में लेके जा रहे हैं. And that's where I feel this is not the right approach for it. Exactly. आजकल सोशल मीडिया पे आपने जो बोला exactly सोशल मीडिया टिकटॉक इंस्टाग्राम पे इतने एस्ट्रोलॉजर्स की रील्स आप स्क्रॉल करो. इफ यू आर 257 born you are this, if you are this born, and plus apps कितने apps है, you download आपके रोज का हॉरोस्कोप आता है. I mean, what's your take on that? Social media और technology में जो astrology apps है, obviously वो तो precise नहीं होंगे. अब सारे 2 born तो same नहीं हो सकते. How is that possible? I know everybody is having the same sun, same everything. आज sun निकला है, आज बारिश हो रही है, सबके लिए same मौसम है, पर हर एक का दिन different है. हर एक के अंतर मन की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट है. कोई किसी चीज़ से जूझ रहा हो सकता है, कोई किसी चीज़ की सेलिब्रेशन में हो सकता है. तो कभी कभी वो सूरज किसी के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो बहुत खुश है. लेकिन कोई इंसान अगर किसी एक्चुअली को रियल पेन से गुजर रहा है, वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, इमोशनल कुछ भी हो सकता है. अगर वो उससे गुजर रहा है तो उसको ना वो सन दिखाई दे रहा है ना बारिश. और अगर कोई बंदा बहुत रेगिस्तान से आया और उसने अगर बारिश देख ली तो वो कहेगा वाओ व्हाट अ मौसम. सो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड यू somewhat has a connection and somewhat the major connection comes from आपके अंतर मन में क्या चल रहा है. Are you connected to that? Okay, sun is doing something for you, आज sunny day है, but how are you ready to receive it? That is where I feel पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था कि इतना कुछ सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन है just because you want your TRPs up and हर चीज़ आप देते जा रहे हो, but क्या वो हेल्प कर रही है? हाँ, श्योरली वो आपके TRPs और सब चीज़ें बढ़ा रही हो सकती है, आई एम श्योर अबाउट इट. वो आप हर चीज़ बताते चले जा रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे ग्रोथ किसकी हो रही है. और फिर मुझे एक बारी को हंसी आई इतना डीप सोचने के बाद. मुझे लगा कि एक्चुअली जो लोग वो ढूंढ रहे हैं कि अगर आप नंबर 1 हो और आप नंबर 2 हो तो अभी उनकी ग्रोथ उतनी है ना, अभी उनको नहीं पता. तो अगर उनकी ग्रोथ का लेवल में अभी कमी है तो उनको वही मिलेगा. हम बोलते हैं ना कि क्या मेरा गुरु सच्चा है कि नहीं, क्या मेरा फलाना सामने वाला सच्चा है. अगर आपके अंदर लॉ लगी है तो यू विल फाइंड योर वे आउट. यू विल फाइंड द राइट पर्सन इफ यू हैव द जेन्युइन बर्निंग डिजायर, right questions within you. I think you will, it's about alignment. It's not about what is sun doing at this time and what is Mercury doing and however. I think if you are ready to receive, you will definitely get your answers. And you are only ready to receive when you have your own mental growth. और वो अगर आपकी होती चली जा रही है, उस पर focused हो आप, तो I'm sure you will going to find the right answers in the right spaces. So, Aanchal, what do you feel like destiny or karma, whom we are relying on? Like, where do we go? देखो, एक होता है पुरुषार्थ, एक होता है प्रारब्ध. प्रारब्ध हम नहीं भाग सकते, वो प्रारब्ध है. दैट इज व्हाट यू आर कैरिंग, दैट्स योर बैगेज. यू हैव टू गो थ्रू दैट. That's your old karmas. That your old karmas. This is how astrology works. वो कर्मास पे बिलीव करती है, वो प्रारब्ध पे बिलीव करती है. मगर आपको पुरुषार्थ साथ में दिया गया. पुरुषार्थ का मतलब है कि आपके एक्शंस क्या हैं, आपका रिस्पॉन्ड क्या है. इफ़ समथिंग इज हैपनिंग विद यू, आपके पास आउटर सर्कमस्टांसिस में तो कोई पावर नहीं है. दैट्स वेयर यू हैव टू गो थ्रू दैट. बट हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट, दैट इज़ वेयर योर प्ले कम्स इन. दैट इज़ हाउ यू कैन डील विद इट. अगर मुझे किसी तरह की पेन भी है, लाइक आई नो लाइक आई गॉट स्टोरीज जो लोग बिना एनेस्थीसिया के भी अपना ऑपरेशन करा सकते हैं, या अपने मन की पावर को उन्होंने इतना प्रगाढ़ किया हुआ है. अगर वो चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं, या ये तो खैर काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, मगर हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशन, दैट इज़ आवर पावर एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक योर पुरुषार्थ कम्स इन टू प्ले. सो ऑब्वियसली यू मीन टू से कि जो लिखा है तो लिखा है हमारे लिए इन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, बट हाउ वी रिस्पॉन्ड, हम क्या करते हैं, आर रिएक्शंस आल्सो
अगले टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं? डेफिनेटली एनी एक्सचेंज ऑफ कर्मास, लाइक आप कुछ भी एक्शन करोगे वो कर्मा में बदलेगा. लाइक इंस्टेंसली अगर आपको किसी ने गाली दी है तो एक रिस्पॉन्ड हो सकता है, वो भी आपकी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है. हर इंसान को गुण दिया गया है, एक सात्विक, एक तामसिक, एक रजस. तो अगर आपने किसी को बोला कि आपका कार का एक्सीडेंट हो गया और आपको पलट के बड़ा ही गुस्सा आया, आप तू इधर आ, निकल के शुरू, यू जस्ट गेट इनटू अ फाइट, तो वो आपका हो गया कि ठीक है तामसिक प्रवृत्ति. क्या आप बोलोगे हाँ मैं वहीं तेरे को बताता हूँ. राजसिक में क्या होगा प्रवृत्ति, अच्छा तुम रुको, मैं भी रुकता हूँ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तो ठीक है आ जाओ, फिर विल डील विद इट. और वो क्या होगा कि यार मुझे पता था ये मेरा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं यार तू निकल, कोई बात नहीं. तो उससे क्या होता है, दैट इज अ सात्विक, यार हो गया ना खत्म, तेरा भी मेरा भी खत्म, इसी में छूट गए हम. तो वो एक थोड़ा सात्विक वो आपका रिस्पॉन्स हो जाता है. सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से जगह से जी रहे हो अपने अंदर, और आपके आगे क्या आ रहा है. प्रारब्ध नहीं बदलेगा. अगर आपको किसी चीज़ से गो थ्रू करना है, हाँ उसकी इंटेंसिटी ज़रूर थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है. आप उसको ये कर सकते हो कि जो चीज़ बहुत मुश्किल से गुजरनी थी वो थोड़ा आराम से गुजर जाए, ऐसा हो सकता है. पर इफ़ यू बाउंड टू हैव समथिंग, कुछ होना है तो वो होके रहेगा, उससे हम बच नहीं सकते. वी कैन नॉट एस्केप आवर कर्मस. आपने जो ये 3 चीज़ें अभी बताई, सात्विक, रजस और तामसिक, तो एवरी पर्सन हैज़ लाइक डिफरेंट ट्रेट्स, बट इन तीनों में से ही कुछ होगा. हाँ ये गुण हैं, ये हमारे गुण हैं. इन 3 गुणों में हर इंसान को डाला गया है. ये आपके प्लानेटरी पोजीशंस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे पैदा हुए, कौन से गुण को लेके पैदा हुए हो. प्लस ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या होता है कि आप कुछ लेके पैदा हुए, लेकिन आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी कितनी हुई है, मेंटल ग्रोथ आपकी कितनी हुई है, कितना आपने जब सब कुछ क्योस में होता है ना, जैसे वो कहते हैं पाती पाती सब करें कीला करे ना कोई. इट्स देयर इज अ सेइंग कि अगर आप चाकी के बीच में पिस रहे हो, 2 पाटन के बीच में जो अगर आप पिस भी रहे हो, तो अगर आप चक्की के बीच में हो तो आप पिस जाओगे गेहूं में. लेकिन अगर कोई गेहूं की कीले के साथ टंग जाती है वो नहीं पिस पाती. तो क्या होता है कि अगर आप कहते हैं ना नाम आधार, अगर एक इंसान ने अपने आप को अंदर से इतना साध रखा है कि वो कुछ भी उसके बाहर हो वो उसको उस लेवल पे अफेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो सारी चीज़ें जो बाहर हो रही है वो आपके पास अफेक्ट देना कम कर देते हैं. दिस इज़ हाउ यू ग्रो एंड दिस इज़ हाउ यू राइज अबव ऑल दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू. तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है. हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि भीतर क्या हो रहा है, क्या मैं उससे ऊपर आ सकती हूँ, क्या वो मेरा आधार बन सकता है, बजाय इसके कि मैं कभी इसको आधार बना रही हूँ, कभी उसको आधार बना रही हूँ. क्या मैं अपना आधार खुद बन सकती हूँ, क्या मेरा आई थिंक जो भी चीज़ आपको अपने क्लोज लेके आ रही है वो पॉजिटिव है, वो दैट इज़ द राइट अप्रोच. वो आपको खोल सकती है, वो आपको रियल परिवर्तन लाइफ में शिफ्ट दे सकती है. लेकिन अगर उसके अलावा हम सिर्फ डिपेंडेंसी रख रहे हैं और फेयर से अप्रोच करना चाहते हैं कि मेरा ये बता दो, मेरा ये हो गया, देयर इज़ नो मैजिक पिल हैपनिंग फॉर एनीबॉडी. एक मेरा क्वेश्चन था, यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, Yeah. आप like if I go to astrology मैं अपने बारे में जान सकती हूँ, but I'm very scared to find out my kids astrology. like बच्चों के मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर कुछ लिखा है ना फिर वो अंदर से डर बैठा रहता है. Do you read your own kids astrology? I'm very afraid of that. It's like एक डॉक्टर को बोला जाए कि अपने किसी ब्लड रिलेशन में ऑपरेशन करो. I think that is also forbidden for them कि ना करो, because there is at the end of the day you are emotional being and you are human being. तो ऑफ कोर्स वो डिफ़िकल्ट होता है. बट हैविंग सेड दैट, थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपको दिख रहा है, कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ परेशानियां हैं, बिकॉज कई बार तो नाम रखने के लिए भी पत्री निकलवानी पड़ती है. कई धर्म मानते हैं कि हमें नाम भी उस हिसाब से निकलवाना है, बिकॉज ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैटर. है कुछ नहीं, नाम भी क्या होता है, नाम जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है उस नक्षत्र का एक कोडिंग कर दी जाती है. उस नक्षत्र में उसको उसका नाम रखने से सामने वाले को पता लग जाता है कि जो लोग जानते हैं कि ये इस राशि का, इस नक्षत्र का, इस टाइम का बर्थ का बच्चा है, तो उससे उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती है. मगर ये कोड है आज की डेट में. आई वुड नॉट से कि यू शुड कीप योर पत्री के नाम नॉर्मल. इट्स बेटर पत्री का नाम पत्री में, बिकॉज वो आपकी कोडिंग है, वो आपकी एक्चुअली ब्लूप्रिंट है. वो सब उससे जो इसको पता है फिर वो सब कुछ पता है उसके बारे में. सो दैट्स हाउ इट इज़. हाँ, बट हैविंग सेड दैट, बच्चों के लिए येस इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग. एंड मेरे को खुद को भी तब मैं जब अपना मन मेरा पक्का हो तब मैं बैठ के उस चीज़ को खोलती हूँ या खोलने की वो करती हूँ. अदरवाइज अगर सब ठीक चल रहा है एंड यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि मुझे नाम भी ऐसे रखना वैसे रखना है, तो आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर यू टू don't go that way if everything's going. अगर इफ यू विल गो टू क्रिएट, यू नो दैट यू विल गो टू क्रिएट फियर इन योर हेड, देन इट इज, क्योंकि आपका फियर वो मैनिफेस्ट कर देगा. फिर इससे बेहतर है कि लेट लाइफ हैपन. Anshul, can we quickly play a small game with you? Yeah. Like quick question, जो आपके माइंड में आए. So
First thing is book or a podcast for spiritual learning. What's your preference? Do you prefer book or listening to a podcast for spiritual learning? Actually, I'm not a reader that much, but definitely I have gone through a lot of books as well. But a podcast is, I'm a listener more than anything else. I'm a listener. What's your favorite food for, you know, like if you are very stressed for the whole day? What do you like to, you know, like go for, you know, isko khane se I'll be like, my mood is chilled out and I'll find my peace and stuff. Something. I think anything Do you have sweet, something? something sweet. Sweet. Yeah. Okay. Okay, true or false about you? You have used your own astrology to make decisions in your life, Absolutely, yes. and for your kids as well in their career path. Definitely. Why not? Yeah. That is an add-on. One quick misconception about astrology what people have and you want to tell them is this is wrong. ये जो लोगों के mind में है, one misconception. I think misconception of taking everything from the space of fear. First of all, don't take everything from the space of fear कि मैं किसी के पास जाऊंगी और कुछ हो जाएगा. हाँ, अगर आपको कोई एक ऐसा इंसान मिलता है जो आपको उस रास्ते से चलना आपके लिए आसान कर सकता है या आपको बता सकता है कि कितनी देर का रास्ता है या बता सकता है, डोंट थिंक कि मैं अपने कर्मा से बच जाऊंगा. और ऐसा किसी का भी चार्ट नहीं है कि सिर्फ अच्छा टाइम चलता रहेगा, वो किसी के लिए भी नहीं है. देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स. नो मैटर हाउ मच हाई वी गो वी हैव टू कम डाउन, एंड नो मैटर हाउ मच नीचे आप किसी भी टाइम पे हो, इतना भी नीचे नहीं हो कि आप ऊपर नहीं चल सकते. सो एनीबडी whom you can relate with and you can find somebody who can give you strength in all your times. And जहाँ दिल बोले, जहाँ पे दिल अपनी अंतर आत्मा बोले कि नहीं ये मेरे लिए सही है, जो चीज़ आपको वापस अपने तक ले आती है, दैट्स योर बेस्ट कनेक्शन. आप recently meditation centers एक meditation center पे गए हो ना? Meditation has been part of me even before astrology. So no, it's not recent. It's like every time I'm everywhere. Would you like to share some experience कहीं के भी that you've been and it was really good? Meditation centers have been many. It's like I can't even think of how many. It's like many. Yeah, I've been blessed. I think I can leave aside my family and I can devote that much time, maybe months together. Months, Oh, nice. okay. Yeah, I have done that. और आप जा भी रहे हो ना अभी? अभी भी जा रही अभी भी जा रहे हो. So किसी को कोई टिप देना चाहोगे like who wants to Life start into- meditation Yeah. but they cannot do it for Yeah. for you know like because starting में क्या होता है eyes अपनी close करके बैठना भी एक task Yeah, होता है. yeah. But you have lot of distractions. कभी बच्चे, कभी कोई आवाज, कभी टीवी, घर पे भी आप नहीं कर सकते, बाहर बैठोगे then you have tensions in your Thoughts mind चलते हैं, or हाँ. thoughts. Yeah. So क्या tip है to start meditation from scratch for beginners? बिगनर्स को मुझे लगता है सोचना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट अपने या 5 मिनट भी अगर आप असाइड करके कोई भी ऐप ले लो, इनसाइट टाइमर है, बहुत सारे ऐप्स हैं, जस्ट पुट 5 मिनट्स टाइमर और अ रिमाइंडर, sit with your eyes closed, no matter what's happening, and even if you sit for 5 minutes your eyes shut down, कोई बात नहीं, उनको होने दो, वो थॉट्स चलते रहेंगे. आपकी इतनी प्रैक्टिस है लाइफ में इंगेज होने की, आपको लगता है आप एकदम से ऐसे बैठोगे और आपसे हो जाएगा, नहीं होगा. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं पहुंचोगे. सो जब हम बोलते हैं ना कि बाहर इतनी इंस्टेबिलिटी है, मैं आपसे सबसे पहला सवाल है कि क्या अंदर स्टेबिलिटी है? लाइक व्हेन इवन कोविड हिट, सबसे पहले सबसे ज़्यादा हिट किसको किया? जिसकी खुद की इम्यूनिटी ख़राब थी. यू नो, वायरस तो सबके लिए बराबर था, मगर ऐसे भी लोग थे जिनको एक बार भी नहीं हुआ, है ना. और लोगों के साथ रहते, लाइक वी हैड सो मेनी डॉक्टर्स वर्किंग एट दैट टाइम, एवरीथिंग, और हर एक के लिए डिफिकल्ट टाइम था. मगर जिसकी खुद की इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो शायद थोड़ी देर उसके साथ चीज़ों के साथ फाइट कर सकता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग बैक कि अपने अंदर अगर आप 5 मिनट रोज़ के बिठा के, क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़नी शुरू हो जाएगी कि मुझे 5 मिनट तो देने हैं, नो मैटर वॉट, कुछ भी थॉट आएगा. एंड डोंट जज योर सेल्फ फॉर दैट. अपने आप को थॉट में इंगेज मत करो, बस ऐसे पासिंग क्लाउड. जैसे अगर हम इधर बाहर देख रहे हैं और इस टाइम ये बादल है, थोड़ी देर बाद ये बादल नहीं भी होंगे, मगर इस बादल को देखते रहो और उसको देखते रहो कि वो जा रहा है और आ रहा है. लाइक थॉट में भी दोज थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग, डजंट मैटर, लेट देम कम. डोंट इंगेज विद देम, डोंट फाइट विद देम, डोंट ट्राई टू पुश देम अवे. Just try to just see कि okay, the thought came in, and धीरे there will be a time when you will be there will be a gap. They'll start building up a gap जहाँ पे दो thoughts के बीच में gap आना शुरू हो जाएगा, and that is the real meditation when you'll see that okay, now I can see myself that there is no thought, that it'll happen in its own accord. So you can actually heal your life with meditation.
like a lot of meditation. If you start doing meditation, you can heal a lot of part of your life, like personal, professional. Can we? I think, in my perspective, everything that we are doing is currently part of the play as a drama, right? Everything that we are, including our kids. सबसे क्लोजेस्ट होते हैं अपने बच्चे, लेकिन अपने बच्चे भी जो होते हैं वो एक्चुअली इनके साथ हम इंगेज करते हैं अपने आप को. हमें कुछ चाहिए अपने से अलावा अपने आप के भरने के लिए. बट जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, एक्चुअली हम खुद मेरी लाइन ये होगी कि हम परमात्मा से भरते हैं. वी बिकम वन विद द वन. उसकी वननेस को महसूस करते हैं. वी बिकम द पार्ट ऑफ दैट. हमें वो उसकी सूरती जागने लगती है. तो वो जो टाइम आता है, उस टाइम को अगर आप वो चीज़ करते रहते हो, धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें झड़ती रहती हैं. जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे शादी हुई नई अपना मायका छूटते हुए बहुत दुख होता है. बट धीरे योर ससुराल टेक्स ओवर, योर लाइफ टेक्स ओवर, योर किड्स टेक ओवर, यू बिकम, अच्छा भी ये लाइफ हो गई, पता ही नहीं चला कि कब वो छूट गया और ये आ गया. सो दिस इज़ हाउ ट्रांजिशन हैपन्स. कि धीरे अगर आप अपनी अंतर यात्रा को शुरू करते हो, धीरे यू स्टार्ट सिटिंग विद योर सेल्फ. धीरे बाहर की चीज़ें झड़ने लग जाती हैं. एंड यू डोंट इवन अंडरस्टैंड, कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि कब आप अंदर अपने मन को अपने अंदर भीतर जा सकते हो. वो उसके साथ वननेस में आ जाते हो. फिर वो चीज़ें आसान हो जाती हैं. So, any mantra for our viewers, listeners? One life mantra that you live by. You live by. Self-connection. Only one mantra is like, go within. Search your answers within. Everything is within. There is nobody out there who can sort anything for you. It's within. Yeah. That's amazing. एक मंशा के पास एक और क्वेश्चन था. मंशा, रिमेम्बर तू मुहूर्त के बारे में? Oh yes, I want to ask you. क्योंकि मंशा मुहूर्त में बिलीव करती है. एंड हम इतना मुहूर्त पे नहीं, हमारे होता है कि बाबा जी एनी टाइम इज गुड टू गो बाबा जी के साथ. वो मुहूर्त है. इंडियन टाइप ट्रेडिशन में भी वो मुहूर्त है. इसलिए 12 बजे हर धर्म ने कहने का ढंग अलग रखा है, मगर चीज़ें वही हैं. हिंदुइज्म में उसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जो आप बोलते हो कि 12 बजे, 11:15 से 12:15 जो मर्जी कर लो. अमृत वेल जो हमारा होता है, हमारा वही एक अमृत वेल होता है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोल देते हैं. ब्रह्म अमृत, हाउ इज इट डिफरेंट? सब कुछ सेम ही है. तो वो बेसिकली कहने का तरीका अलग है, मगर डेफिनेटली मुहूर्त का मतलब ये होता है कि जैसे एक डिस्टाइंड है, एक चीज़ है. हर चीज़ के बड़े डिटेल के मुहूर्त निकलते हैं वैसे तो. अगर किसी को शादी करनी है, बच्चा करना है, घर बनाना शुरुआत करनी है, हर चीज़ का एक डेफिनेट मुहूर्त होता है. तो मुहूर्त का क्या मतलब होता है कि आपको पता है कि अब आप इस फ्लाइट में बैठोगे, ये फ़्लाइट दिल्ली जा रही है. अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप इस फ्लाइट में बैठ जाओ, आप दिल्ली पहुँच जाओगे. ये मुहूर्त है. अगर आपको पता है कि ये अभी मुझे पता नहीं कहाँ है, पर मुझे फ्लाइट पे बैठना है, तो मैं फ्लाइट पे तो बैठ गया, मुझे नहीं पता मैं दिल्ली उतरूंगी कि मैं कहीं और उतरूंगी. इट्स लाइक दैट. मुहूर्त क्या है? इट्स डिस्टाइंड. वो सही टाइम चल रहा है. उस सही टाइम पे आपने कोई चीज़ की शुरुआत कर दी, आपको अड़चने नहीं आएंगी, आप आराम से फ्लो में उस जगह पे पहुंच जाओगे. दैट्स इट. दैट इज़ इट. जैसे अगर आप सेलिंग के लिए जा रहे हो तो आप विंड्स चेक करोगे, पानी का वो चेक करोगे कि अब्रप्ट है क्या है, आज. तो वो सारी चीज़ें हैं. इट्स जस्ट दैट मुहूर्त का सिर्फ इतना मतलब है कि आप इजीली उस चीज़ को फ्लो में करते जाओगे. मुहूर्त इज़ अ गुड थिंग टू चेक. तो बिकॉज हमारे बड़े बोलते थे कि कुछ भी करो, अब काम शुरू कर रहे हो तो आप अच्छे टाइम पे करो, अच्छे दिन में शुरुआत करो. पर आज के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, ऐसा जैसे हमने भी नहीं करा कभी. हम भी यंगस्टर्स में आते हैं. बट you know like it's like कि if I believe something my husband don't believe it. So हमने कभी इसको ना प्रॉपरली करा नहीं. बट हमारे बड़े हमेशा बोलते हैं कि भाई जो भी कुछ करो तो ऐसा करो. बट हमारे आने वाली जनरेशन, हम तो चलो मान रहे हैं इतना, बट वो तो बिल्कुल ही दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट. I feel मेरे पास एक डिफरेंट वर्जन है इस चीज़ का. मुझे ऐसा लगता है कि द यंगस्टर्स दैट आई एम नाउ engaged with, जैसे मेरे बच्चे भी हैं, शी हैज़ यूज्ड इट टू हर कोर. लाइक उसने अपने चार्ज के हिसाब से अपना करियर चूज़ किया. उसने अपने, और मैं और बच्चे भी देख रही हूँ जो यंगस्टर्स हैं, वो अब देखना चाह रहे हैं कि बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस, मैथमेटिकल कंडीशन, आपकी कैलकुलेशंस हैं, उसके हिसाब से आपने अपना सोल को मैप को रीड कर लिया है. अब आपको पता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं हो सकती. मुझे पता है कि ये स्ट्रगल एरिया है, लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ है चार्ट की, ये मैं बहुत अच्छा करूँगी. तो क्या हो गया, उन्होंने पहले, क्योंकि स्मार्ट है ना, वो हर चीज़ नहीं ढूंढ रहे, क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ है, चलो इसी तरफ चलते हैं हम. तो वो स्ट्रेंथ को ही बिल्ड कर रहे हैं. सो मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट साइंस. एंड और ये बच्चों को मैं
इस तरीके से मैं आगे वाली जो जनरेशन है उनके साथ ये डेफिनेटली चाहती हूँ कि वो इसको अपने लिए यूज़ करें. इट्स अ वेरी पोटेंशियल टूल टू बिल्ड अप वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिल्ड अप. मगर कई बार क्या होता है बच्चे को ज़बरदस्ती हम रुलाए जा रहे हैं, स्पेशली इन इंडिया. आई हैव सीन कि बच्चे पढ़ाई नहीं हो रही फलाना, उसका चार्ट ही नहीं बोलता कि वो उसका कार्मिक वो धर्म ही नहीं है कि वो उस चीज़ को उस तरीके से किसी चीज़ को ऐसा थोड़ी कि हम सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा करेंगे तो ही अच्छा करेंगे. लाइक वी हैव पीपल लाइक मार्क जुकरबर्ग एंड ब्ला ना, उनसे बड़ा हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें हैं. सो नोइंग व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड बिल्डिंग ऑन दैट इज़ वेरी वेरी गुड. एंड हैविंग टू हैव दैट विद यंगस्टर्स इज़ एक्सेलेंट, बिकॉज हमारा तो बहुत टाइम निकल गया, लेकिन उनके पास अभी टाइम है टू जस्ट स्टार्टिंग फ्रेश. सो व्हाई नॉट टेक दिस एज अ टूल कि मैं अब अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकती हूँ, नॉट फ्रॉम द स्पेस ऑफ फेयर, नॉट कि वो मुंडेन चीज़ों के साथ, एंड हैविंग दैट नॉलेज कि लाइफ में रफ पैचेस आएंगे, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हाउ आई सेल थ्रू. क्योंकि जब हम कुंडली भी चेक करते हैं उसमें 12 हाउसेज हैं, तो वो 12 हाउसेज आपके अप्स एंड डाउन्स दोनों को दिखा रहे हैं. कौन सा ट्रबल एरिया वो भी है उसके अंदर. सो वो 12 हाउसेज आपके पास भी है और सबके पास हैं, तो वहाँ पे ट्रबल एरियाज हैं वो सबकी लाइफ में आएंगे. सो डोंट ट्राई एंड इवेड एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू थिंक कि मैं कैसे इसको सेल थ्रू करूँगी, बिकॉज इट्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. That's how it is. यूज इट टू योर एडवांटेज. To अगर advantage, आपकी yeah. लिखा है कि जैसे लॉयर्स हैं, उनकी कुंडली में लिखा होगा कि यू नो यू आर गोइंग टू बी. एब्सोल्युटली. लॉयर्स की एक जो अगर आप देखोगे कि तो एक कॉमन प्लैनेट चल रहा होगा, डॉक्टर्स का देखोगे एक कॉमन चीज़ चल रही होगी, आर्मी पर्सन्स का देखोगे उनका एक अलग चल रहा होगा, उनके सबके स्ट्रांग होंगे ही मार्स, मतलब वो अदरवाइज वहाँ हो ही नहीं सकते. Knowing this will just help them choose their career. हाँ, exactly. Okay. So how quickly we can do that for our kids? Like, you know, for example, if a child is born, Yeah. we can gift him कि भाई हमने तेरे लिए पूरा एस्ट्रोलॉजी चार्ट कर दी. How quickly, you know? That is not a gift, that is a manipulation. That's not a gift to the child, it's a gift to you कि how do I handle this. So, like, पहले से बता दो भाई तेरी कुंडली में ये लिखा था तू डॉक्टर बन रहा है. so this is what you know, like, और मतलब शुरुआत कौन सी एज में हो जानी चाहिए? Definitely before choosing a career. Before choosing a career, definitely. उससे पहले अगर आप करवाते हो, आपको नामकरण करना है, सब कुछ करना है, उस हिसाब से देखना है, वेल एंड गुड. अगर बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, डेफिनेटली यू मस्ट गेट इट चेक, बिकॉज देयर आर सर्टन वेज जिसको जो प्लानिटरी पोजीशंस को आपके स्ट्रॉन्गर कर देती हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. हैविंग सेड दैट, नॉर्मल कंडीशंस में आई थिंक करियर से पहले तो बच्चे को डेफिनेटली एक बारी मुझे लगता है कि अपना चार्ट चूज, क्योंकि उससे क्या होता है उसकी जो भी एबिलिटी है उसको आप इन्हांस कर रहे हो ना, उसका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से बढ़ा हुआ है. अब उसको आप शुरू से बोल रहे हो कि नहीं तू साइंस ले ले, वो कॉमर्स का बच्चा है, वो मैथमेटिक्स अच्छा कर सकता है, उसके चार्ट में लिखा है, लेकिन आप उसको साइंस कराना चाहते हो क्योंकि घर में सब डॉक्टर्स हैं, यू नो, और हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, यू नो, उसका डिफरेंट एनर्जी है उसके अंदर, तो वो चीज़ को जानना उस सबके लिए आसान है. घर में सब एक दूसरे से क्योस में नहीं जाके फ्लुएंसी में चले जाते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है जल्दी. So that's amazing. Thank you, Anchal. Thank you. We are very happy to have you on our first episode. Thank you. And before we go, we can just ask you if you can tell our viewers, listeners, like how can they contact you? I have my social media handles. You can just contact me there, and you can direct message me on Instagram. Thank you, Aanchal, for coming on our first episode of Mantras. We are so delighted to have you. Pleasure is all mine. Thank you so much for calling me here. And I wish you all the best, and may you grow bigger and bigger every time. Thank you, Aanchal. Thank you.